हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द इमरजेंस ऑफ अ न्यू रिलीजियंस, देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम रिगार्डिंग टू द जनपद। इन दिस पीरियड द center of the economical and political activities shifting from the Haryana and the western UP to the eastern UP and Bihar, which had a more rainfall and the better fertility of the land, as it was not easier to exploit the iron ore resource of Bihar and the joining of religious people started using more and more iron tools and pluggers share to be a clear thick forest cover and cultivate their hard soil of this area. There is a most important for the emergence of a new religions. The evidence of the growth of agriculture comes from to the archaeologically and literally the source of this period. In fact, a plunger shed is dated to the around 500 BC has been to found from a Jakhera in the Istha district of western UP. Many other important pieces of the evidence of the use of iron in this period and come to the Rajghat, Kasambai and Vaisali and there is Sonpur. There is the most important area here. The Buddhist text is to tell us how to cultivation of the paddy, sugarcane and mustard requires utmost care and the several rounded of plunging. An expansion of the agriculture resulted in their improve from food supply and the helped in their development of craft production, trade and the urban center. There is a most important here. The 6th century BC is known as an era of the second urbanization. There is the most important era of 16th century era, and in their Indian is a subcontinent. After the decline of the Harappan town urban center, now the emerge again after a gap of more than 1,000 years. However, this time's town developed in the middle Ganga basin and not in the Indo-Plan. It is said that is more than 60 towns and cities such as the Patliputra, Rajgura and the Sauramatis and Varanasi, Vaishali, Champa and Kusambi and the Ujjain development of it between 600 and 300 BC. And these cities become a center of craft production and trade and were inhabited by a large number of artisans and merchants. The good produced by the artisan like a textile, silk and jewelries is a poetry, etc. There is a most important here and where is acquired by the merchant to the other towns. Varanasi was a major center of trade, is connected with the Sabarmati and Kusambi. And Sabarmati was also connected with the Vaisali through the Kapil Vastu and the Kosinara. And Jataka is a story tale as that is a trade traveled from to the Magad and Koshal via the Mathura to Taxila. And the Mathura was the trans-cities or point of travel to the Ujjain and the coastal area of the Gujarat also. There is a most important trade here. Development of trade is reflected in the discovery of thousands of coins as known as a punch market coins. Means here a PMC. The PMC here a punch mark coin. The various kind of marks such as the crescent of fish, tree, hills, etc. are punched on this coin. And they are therefore called punched mark coin. Means PMC. The numismatics has identified the nearly of 550 types of such a coin made up mainly of silver and sometimes is a copper. The improvement in agriculture and development of trade is money and their urbanization had on the impact on the society as well. Indeed, due to this is a change in traditional equality and brotherhood, give way to the inequality and social conflict. People is wanted some kind of
is a repair is from to new social problems like a violence, curiosities and craft, hatred, and there is a fleshhood. The falsehood there is the most important, and therefore when to the new religions such as a Jainism and Buddhism is a preached, there is a concept of peace and social equality. People is a welcome it, and this religions is a emphasis that is a true happiness does not be lies on material is prostitute and their performance of rituals, but is a charity, fidelity and non-violence and a good social conduct. Besides that, general economical progress has led to be a rise of Vaishyas and other mercantile is groups who is want to better social position than and what is the Brahmans give them. There is a preferred to the Platonize is a non-Vedic religions like Buddhism and Jainism through the subsequently donations. Buddhism and Jainism were not the only religions which is a challenge. The Brahmanical is a dominance. According to the Buddhist source, more than 62 sect and the philosophies is a flourished in this period. One of these sect was known as the Ajivika. Ajivika is the most important, which was founded by is a Makhalis Ghoshal. The Makhalis Ghoshal is a Ajivikas were very popular in the Magadh in the 3rd century BC, and Mauryan king is a donated several caves in the honor of Ajivika monks. There is a most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जनपद से साम्राज्य की ओर, यानी जनपद से हम साम्राज्य की ओर जाने के लिए अग्रसर हैं। इसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक आया है नए धर्मों का उद्भव। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनपद से आप साम्राज्य की ओर कैसे जा सकते हैं और जाएंगे तो इसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन है जिसको हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। आप एमसीक्यू करके जो है अच्छे से एग्जाम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर भी आज आपसे 100 गुना आगे निकल चुका है। वो कभी भी आपको जो है एमसीक्यू रिगार्डिंग जो आप देखते हो वो नहीं आता है। वो जो है चैप्टरों के अंदर से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है जो आपके लिए जरूरी है। इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए वो सारे क्वेश्चन वहाँ से उठाता है जहाँ से जो है यूपीएससी वाले हो या सीबीएसई वाले हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, जैसे देते हैं वैसे ही हम चैप्टर ही करते हैं। चैप्टर करने से ये होता है कि हमारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो सारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू से सिर्फ आपको कुछ ही जो है बातों का ज्ञान हो सकता है। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो यहाँ पर आया है टॉपिक नए धर्मों का उद्भव। किस समय? जब जनपद थी और जनपद से साम्राज्य की ओर हम गए, उस समय काल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इस काल में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र केवल हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थानांतरित हो गया था। यानी देखा जाए तो हरियाणा और बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था राजनीतिक गतिविधियों के लिए, जहां पर ज़्यादा वर्षा होती थी और अधिक उपजाऊ भूमि थी। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हम वैदिक पीरियड कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि आर्यन वहीं पर तभी जा सकते हैं जहां पर उनके लिए उचित मात्रा में सभी चीज़ उपलब्ध हो, यानी उपजाऊ भूमि तो होनी ही चाहिए। तभी आर्यन जो थे भारत के अंतर्गत काफ़ी आकर्षित हुए थे, क्योंकि इस समय तक बिहार में उपलब्ध लोहे आयश के साधनों से जो लाभ उठाना आसान हो गया था और लोगों ने घने जंगलों की कटाई और इस क्षेत्र की कठोर मिट्टी को खोदने के लिए औजार और हल की फाल इत्यादि का प्रयोग शुरू कर दिया था। हमने ये बात आर्यन सभ्यता में भी पढ़ा था कि इतना अधिक जंगलों को काट देना संभव नहीं था, इसलिए हो सकता है कि आर्यन को भी जो है लोहे का ज्ञान हो। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर थी जो हम आर्यन के समय के अंतर्गत पढ़े थे। अब यहाँ आगे है हमारे कि इस काल में पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक स्रोतों से प्रमाण मिले हैं कि कृषि की पैदावार में वृद्धि हुई थी। वास्तव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से एटा जिले में जखेरा नामक स्थान पर 500 ईस्वी पूर्व के आसपास एक हल की फाल मिली है। अब समझ सकते हो कि अगर 500 ईस्वी पूर्व के अगर जो है हल की फाल मिली है तो इसका मतलब था कि वो इस चीज़ से परिचित अवश्य रहे होंगे। और इस काम में लोहे का प्रयोग किए जाने के अनेक हमें साक्ष्य राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली और सोनपुर से भी मिले हैं।
तो इसका मतलब है कि 500 ईस्वी पूर्व जो थे इनको लोहे का पूरा पूरा ज्ञान था। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के ग्रंथों से तो हमें पता चलता है कि धान, गन्ना और सरसों की खेती के लिए कितनी सावधानी की जरूरत होती है और इसमें अनेक बार जुताई करनी पड़ती थी। खेती बाड़ी के विस्तार के फलस्वरूप खाद्यों की आपूर्ति में सुधार हुआ और जो है शिल्पकारी के उत्पादों और व्यापार और शहरी केंद्र के विकास में भी सहायता मिली। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल को भारतीय उपमहाद्वीपों में जो है कुछ शहरीकरण के चरण के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा कालीन नागरिक केंद्रों के पतन के बाद 1000 वर्षों के अंतराल के बाद अब पुण्य शहरों का विकास होना शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे हमने हड़प्पा काल में पढ़ा था उसके 1000 साल के बाद पुण्य जो है शहरों का विकास हुआ, परंतु इस बार शहरों का विकास मध्य गंगा की घाटियों के क्षेत्र में हुआ, न कि सिंधु नदी की घाटियों में। यानी देखोगे तो गंगा के क्षेत्र में अब विकास हुआ, न कि सिंधु घाटी के क्षेत्रों में। कहा जाता है कि 600 और 300 ईसा पूर्व काल में जो है पाटलिपुत्र, राजगीर और श्रावस्ती और वाराणसी, वैशाली और चंपा, कौशाम्बी और उज्जैनी जैसे जो है 60 शहरों का विकास उस समय हुआ था, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी है कि 60 शहरों का विकास होना ये बहुत बड़ी बात आती है और आश्चर्यचकित की बात है। ये नगर शिल्प, कला, उत्पाद और व्यापार केंद्र बन गए धीरे धीरे। यानी देखा जाए तो समय रहते ये जो थे शिल्प, कला, उत्पादों और व्यापार के केंद्र बन गए और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कारीगरों और व्यापारियों का निवास होने लग गया। यानी अधिक संख्या में कारीगर जो थे यहाँ रहने लग गए, व्यापारी यहाँ निवास करने लगे, जिससे ये क्षेत्र जो था फली फूली काफ़ी। कारीगरों द्वारा बनाए गए वस्तुओं जैसे कपड़े, रेशम, गहने, मिट्टी के बर्तन इत्यादि को यहाँ के व्यापारी अन्य शहरों में ले जाते थे और वहाँ पर वो व्यापार बहुत जो है अच्छे से कर सकते थे। कहते श्रावस्ती और जो कौशाम्बी से जुड़ा शहर वाराणसी व्यापार का मुख्य केंद्र था। यानी देखा जाए तो वाराणसी उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहां व्यापार का केंद्र बनाया गया था। समझते भी जो है कलिबवस्तु और कुशानारा के जरिए जो है आपस में जुड़ गए थे। यानी कुशिनारा के जरिए जो जुड़ना बहुत बड़ी बात था। और जहाँ तक कथाओं से पता चलता है हमें कि व्यापारी मथुरा और तक्षशिला के रास्ते मगध और कौशल से व्यापार के लिए जाया किया करते थे। उज्जैन और गुजरात में जो है समुद्री तटीय क्षेत्रों की यात्रा के लिए मथुरा परागमन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उज्जैन और गुजरात जो है समुद्री तटीय क्षेत्रों की यात्रा के लिए मथुरा जो है परागमन का मुख्य केंद्र हुआ करता था, जो कि बहुत जरूरी बात है। ये सांचों में ढलाई करके बनाए गए हजारों मुद्रित सिक्काएं यानी पंच मार्क्स जो है सिक्के यानी PMC की खोज से विकसित व्यापार की झलक हमें मिलती है। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट समय काल था जहां मुद्रित सिक्कों का जो है प्रचलन बढ़ गई थी। विभिन्न प्रकार के चिन्ह जैसे अर्धचंद्रकार, मछली, पेड़, पहाड़ी इत्यादि के चिन्ह इस सिक्कों पर पाए गए हैं। इसलिए इन सिक्कों को हम पंच मार्क सिक्के यानी सांचे की ढलाई में बने सिक्के भी कह सकते हैं। मुद्रा शास्त्रों ने ऐसे लगभग 500 सिक्कों की पहचान की गई है जो मुख्य चांदी कहीं कहीं तांबे से बने हुए थे। यानी 500 सिक्कों की पहचान हुई है जो चांदी और तांबे से बने हुए थे। कृषि में सुधार और व्यापारिक, आर्थिक और शहरीकरण के विकास का प्रभाव समाज पर भी काफ़ी हद तक पड़ा। बेशक इन परिवर्तनों के कारण जो है पारंपरिक समानता और भाईचारों में असमानता और सामाजिक संघर्ष होने लग गए थे। तो जर्नल सी बात है कि अगर कहीं कोई समाज रहता है तो संघर्ष होना एक स्वाभाविक बात रहती है। हिंसा, अत्याचार, चोरी, नफरत और झूठ जैसी सामाजिक बुराइयों में लोग किसी प्रकार से छुटकारा चाहते थे। इसलिए बौद्ध और जैन धर्मों ने जब शांति और सामाजिक समानता का प्रचार किया तो लोगों ने इसका जो है स्वागत किया, क्योंकि लोगों का मन जो था अत्याचार, बुराइयों से उब गया था। इसमें अशोक का भी स्टोरी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जब अशोक ने कालीन के जब युद्ध हुआ, जब उसके जो हताहत होने की जो इतना बड़ा दृश्य देखा तो उसका भी मन बहुत काफ़ी उब गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध के प्रचार के लिए उसने बखूबी बहुत ही प्रयत्न किया। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी समाज हो उसमें युद्ध, लड़ाई झगड़े को जो है महत्वता नहीं दी जाती है।
है, क्योंकि इससे सिर्फ हमारी शांति भंग होती है और ये हर एक काल के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, इन धर्मों ने इस बात पर काफी जोर दिया कि वास्तविक प्रसन्नता सुख में है, किसी भौतिक समृद्धि अथवा धार्मिक अनुष्ठान में नहीं है। यानी वास्तविक सुख जो है हमारा, जो हम धर्मों से रिगार्डिंग जो शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं उसमें है, ना कि कोई समृद्ध भौतिक चीज़ों में और न धार्मिक कोई अनुष्ठान में, बल्कि इन दान, मित्रता, हिंसा और अच्छे सामाजिक व्यवहार में है। यानी आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार करते हो, दान दक्षिणा देते हो, मन आपका प्रसन्न रहता है, तो ये सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात रहती है। उसके अतिरिक्त जो है सामान्य आर्थिक प्रगति के कारण वैश्यों और अन्य व्यापारी समूहों का उदय हो गया था। तो जनरल सी बात है कि ऐसे क्षेत्रों में ऐसे चीज़ों का उदय होना एक स्वाभाविक बात था, जो अब अपने लिए उस सामाजिक सदस्य से बेहतर स्थान पाने की इच्छा रखने लग गए थे, जो ब्राह्मणों ने उनके लिए निर्धारित किया था। ठीक है, यानी जो ब्राह्मणों ने उनके लिए स्थान निर्धारित किया था उससे वो ऊपर उठना चाहते थे, इसके लिए हर संभव वो जो है प्रयत्नशील रहते थे। इसलिए उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म जैसे गैर वैदिक धर्मों का अनुसरण कर लिया। और वह कहते हैं उस समय जो था और गैर वैदिक या वैदिक कोई भी धर्म उन्होंने अपनाया था, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो अपने रीति रिवाज से छुटकारा पाना चाहते थे, अपने नीच जात होने से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि नीच जात को लोग जो थे बहुत ही घृणा के दृष्टि से देखते थे। इसलिए वो धर्म में परिवर्तन कर लेना ही अपना सोचे उचित समझते थे। केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ही ब्राह्मणों के वर्चस्व की चुनौती नहीं दी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के विविध सूत्रों से पता चलता है कि इस काल में जो है 62 पंथों दार्शनिक विचारधाराओं से भी अधिक विचारधारा प्रचलित थी। यानी 62 की बात की जा रही तो बहुत ही होगी, यानी इतने सारे विचारधारा जो थे उस समय प्रचलित थी। इनमें से एक का नाम था आजीविका। आजीविका जिसकी नींव मिखाइल घोष ने रखी थी। यानी आजीविका क्या है और मिखाइल घोष ने इसका नींव क्यों रखा था, देखना हमारे लिए जरूरी है। देखा जाए तो आजीविका का अर्थ जो है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में आजीविकाएं मगध में बहुत प्रचलित थी और यह मौर्य शासक ने आजीविका के भिक्षुकों को अनेक गुफाएं दान में दी थी। यानी इसी को हम जो है आजीविका कहते हैं, जिसमें बहुत से भिक्षुकों को जो है आजीविका के रूप में जो है मौर्य शासक ने गुफाएं दान में दिया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर। आगे जो हमारे समक्ष होगा बौद्ध और जैन धर्म के जो है सिद्धांतों के बारे में, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा हमें बौद्ध और जैन धर्म के समझने के लिए। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते